قومی اسمبلی کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ آرمی چیف نے اراکین اسمبلی کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ سپہ سالار کا کہنا تھا کہ نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں۔ قومی اسمبلی کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف، ڈی جی ISI، ارکان اسمبلی کی شرکت، دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پر ایوان کو بریفنگ، نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے، سپہ سالار نے واضح کر دیا۔ ان کیمرہ سیشن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس وسائل اور افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں، عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں۔ پاک فوج ملک کی ترقی اور کامیابی کے سفر میں ان کا بھرپور ساتھ دے گی۔ ارکان اسمبلی نے ڈیسک اور تالیاں بجا کر آرمی چیف کے خیالات کا خیر مقدم کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف کیمپین ریاست پاکستان کی پہلے سے منظور شدہ اور جاری اسٹریٹجی پر مبنی ہے۔ اس کیمپین میں سیکیورٹی اداروں کے علاوہ حکومت کے تمام ضروری عناصر شامل ہوں گے۔ یہ نیا آپریشن نہیں بلکہ ہول آف نیشن اپروچ ہے۔ سپہ سالار نے واضح کیا کہ اس وقت پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں رہا۔ شہداء کے غازیوں نے اپنے خون سے اس وطن کی آبیاری کی، ان میں 80,000 سے زائد افراد نے قربانیاں پیش کی۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ دہشت گردوں کے لیے ریاست کی ریٹ کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ دہشت گردوں سے مذاکرات کا خمیازہ ان کی مزید گروہ بندی کی صورت میں سامنے آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی۔ شہداء کی عظیم قربانیوں سے ہی امن بحال ہوا۔ قومی اسمبلی کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے سوال کیا کہ ملک میں دہشت گردی واپس کیوں آئی؟ ہم دشمنوں کو واپس کون لے کر آیا؟ پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی سلامتی سے متعلق ان کیمرہ خصوصی اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف نے فوج، رینجرز، پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسروں اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کی۔ اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی۔ ہمارے شہداء کی عظیم قربانیوں سے امن بحال ہوا تھا۔ یہ محنت 4 سال میں ضائع کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے سوال بھی اٹھایا کہ ملک میں دہشت گردی واپس کیوں آئی، کون لایا؟ تمام صوبوں میں دہشت گردی کے خاتمے اور فاٹا اصلاحات کے لیے رقوم دی، وہ کہاں گئی؟ اس کا جواب لینا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ قومی سلامتی اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان اور معاشی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ کوئی نیا آپریشن شروع نہیں کیا جا رہا، اداروں میں جاری جنگ سب کو مل کر ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ سابق حکمران اس کے حساب سے بچنے کے لیے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ یہ بات ہوئی ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان کی جو تمام شکات تھیں ان کو آپریٹو کرنا چاہیے۔ اس وقت نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے اتنا ایکٹیو نہیں ہے جتنا 2013-14 میں ہوا تھا، اور دہشت گردی کنٹرول ہوئی تھی۔ 417 ارب روپیہ اپنے NFC کے شیئر سے باقی صوبوں نے کاٹ کے جو ہے KP کو دیا تھا، اور اس کا کوئی نظر نہیں آتا کہ وہ 417 ارب روپیہ کہاں خرچ ہوا۔ اس کے تحت جو ہے CTD بننی تھی، ایفیکٹو بننی تھی، لیبز بننی تھی، ٹریننگ ہونی تھی، اکیڈمیز بننی تھی۔ کنفیوژن ہے جو اس وقت ٹرموائل چل رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو جو ہے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان سے کوئی حساب نہ لے جو حکمران جو ہے ہمارے گئے ہیں یا ان کے جو اسپانسر جو تھے۔ سیاستدان تو آپس میں مذاکرات چلیں کرتے رہیں گے جی، لیکن یہاں پہ تو صرف سیاستدان کے جھگڑوں کا تو سوال نہیں ہے، صرف یہاں تو یہ اداروں کے جھگڑوں کا بھی بیچ میں سوال ہے۔ جب یہ ادارہ جاتی جو ہے جنگ جو ہے، جب تک یہ بند نہیں ہوگی تو اس کے لیے جھگڑے جو ہیں پھر سارے کے سارے اداروں کو بیٹھ کے جو ہے وہ ان کا کوئی ہماری عسکری قیادت کسی طرف اپنا ویٹیج نہیں ڈالتی سر، تاکہ وہ فیصلہ جلدی ہو کسی طرف بھی؟ میں اس چیز پہ کیا کمنٹ کر سکتا۔ اور قومی اسمبلی نے مختلف بلوں کی منظوری دینے کے ساتھ ساتھ ڈیم فنڈز کی رقم قومی خزانے میں جمع کرانے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو زیر سماعت لانے کی مذمت اور پارلیمان کے اختیارات میں مداخلت سے متعلق 3 قراردادوں کی منظوری دے دی۔ اجلاس پیر کی سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ قومی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس، اختیارات سلب کرنے پر سپریم کورٹ کے خلاف قرارداد منظور، ایوان کا 8 رکنی بینچ پر اظہار تشویش، ڈیم فنڈز قومی خزانہ میں جمع کرانے کا بھی مطالبہ، چیئرمین نیب کے اختیارات بڑھانے سمیت
3 बिल भी मंजूर कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन अली मूसा गिलानी ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान पार्लिमान के कानून साजी का मुसल्मा दस्तूर इख्तियार को सलब करने की सुप्रीम कोर्ट की जारहाना कोशिश को सख्ती से मुस्तरद करता है और दो टोक अंदाज में वाजे करता है कि पार्लिमान के इस इख्तियार में मुदाखलत नहीं की जा सकती। बजट, मालियाती बिल और वसाइल के इजरा से मुतल्लिक मंजूरी का तमाम इख्तियार पार्लियामेंट के पास है और कोई इसको छीन नहीं सकती। करारदाद में कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खिलाफ कानून और ज़ाब्ता 10 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दियामर भाषा और महमद डैम्स फंड कायम किया। अखबार की खबर के मुताबिक जनवरी 2023 में चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच को आगाह किया गया था कि डैम फंड्स में 16 अरब 53 करोड़ रुपए मौजूद हैं, जो अगली तिमाही में बढ़कर 16 अरब 98 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ऐवान मुतालबा करता है कि डैम फंड्स में जमा होने वाली ये रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाए और ये वसाइल 2022 के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए बरूए कार लाए जाएं। ऐवान ने सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के हुक्मनामे के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर कर ली और 8 रुकनी बेंच के गुज़श्ता रोज के हुक्मनामे को मुस्तरद कर दिया। करारदाद में कहा गया है कि हुक्मनामा आइन और कानून से मुतसादिम और पार्लियामेंट के अमूर में मुदाखलत है। कौमी असम्बली ने ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल 2023, चेयरमैन नैब इख्तियारात में इजाफे से मुतल्लिक नैब तरमीमी बिल 2023, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स बिल 2023 की भी मंजूरी दी। कौमी असम्बली ने आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस के इख्तियारात में मजीद तरमीम का बिल मंजूर कर लिया है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना था कि कानून साजी और बिल कमेटी को भिजवाना भी इस पार्लियामान का हक है, मुदाखलत हमारी नहीं, इनकी तरफ से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो कि नजर सानी की है, रिव्यू की, उसके बारे में ये इख्तियार देता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए फैसलों पर नजर सानी कर सकती है सब्जेक्ट टू एनेक्टमेंट मेड बाय, यानी कि कानून जो कि पार्लियामान बनाए या जो कॉन्स्टिट्यूशन में और जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। रिव्यू का जो स्कोप है उसको इनलार्ज किया, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया, उनकी जुरिस्डिक्शन को इनलार्जमेंट दे रहे हैं। और दूसरा, उसमें लिमिटेशन में 30 डेज़ है, उसको 60 डेज़ तजवीज़ कर रहे हैं। एक वन टाइम डिस्पेंसेशन भी है। सर, ये लिटिगेंट्स के लिए और वो लोग जिनके हकूक़ के हवाले से फैसले 184(3) में होते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में या सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में, सर उनको हकूक़ के हसूल के लिए आसानी होगी और जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड आर्टिकल 4, आर्टिकल 10 है और आर्टिकल 25, उनकी फराहमी में आसानी होगी जी। तो मैं इसे अपोज नहीं करता जी। ये कानून साजी इस हाउस का इख्तियार है और कमेटी को भेजना जो है वो भी हाउस का इख्तियार है। और ये ज़हन में रखिए कि इस इदारे ने आज तक किसी के टेरिटरी में दखल अंदाजी नहीं की, दखल अंदाजी उधर से ही हो रही है। और आप निकल आए इन बातों में से, आपको 22 करोड़ अवाम का ये मैंडेट है कानून साजी का। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हम इलेक्शन से नहीं डरते, सिर्फ टाइमिंग पर एतराज है। पूरे मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन अक्टूबर से आगे गए तो ये छोटी सोच होगी। आसिफ अली जरदारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि पंजाब की लड़ाई पूरे पाकिस्तान को मुतासर कर रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। उनका कहना है कि मसाइल ये नहीं कि वो इलेक्शन से डरते हैं, उनकी राय में एक ही दिन में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन पर नहीं, टाइमिंग पर एतराज है। अक्टूबर से आगे इलेक्शन हुए तो छोटी सोच होगी। साबिक सदर का कहना था सियासत में डायलॉग के रास्ते बंद नहीं किए जाते। पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी पहले इत्तेहादियों से तबादला ख्याल करेगी। लड़ाई पंजाब की है लेकिन पूरे पाकिस्तान को मुतासिर कर रही है। आसिफ जरदारी ने कहा कि इमरान खान का अपना आर्मी चीफ लाकर लंबा प्रोग्राम था, इन्होंने 2035 तक प्लानिंग की थी। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि इमरान खान मकबूल लीडर नहीं, बेचारे बच्चे हैं जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि इमरान खान ने ईद के बाद पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी है। कहते हैं मेरी इक्तदार में वापसी रोकने के लिए मुल्की निजाम तबाह किया जा रहा है। 27वीं रमजान के बाद पीटीआई के खिलाफ एक और क्रैकडाउन का प्रोग्राम बना लिया गया है। वीडियो ने खिताब में चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि तोशाखाना केस अब बड़ा मजेदार हो गया है। मरियम नवाज ने मर्सिडीज चोरी करके बेच दी। सिर्फ और सिर्फ ये अपनी चोरी बचाने के लिए ये मुल्क का सारा निजाम तबाह कर रहे हैं। किसी तरह इमरान खान ना आ जाए वापस। तोशाखाना का केस ये बड़ा मजेदार केस हो गया। नवाज शरीफ ने 10 साल एक चोरी की गाड़ी चलाई। तोशाखाना की गाड़ी उसने डिक्लेयर किए बगैर घर में रखी 10 साल। जब यूसुफ रजा आया तो तब कहा कि इसको लीगलाइज करो। अब ये पता चला कि मरियम ने भी एक तोशाखाना की गाड़ी डिक्लेयर नहीं की और वो भी कोई 2 करोड़ रुपए की बाद में बेच दी चला के। अगला फेज शुरू हो रहा है।
फेज ये है कि इमरान खान के इर्द गिर्द लोगों को पकड़ो कि अगर इलेक्शन होना ही है तो इनकी पार्टी को बिल्कुल कमजोर कर दो। कॉल दे रहा हूं अपनी पार्टी को, अपनी कौम को, कि हमने अब सब ने पुरअमन एहतजाज की तैयारी करनी है। ईद के बाद इन्होंने 27वीं के बाद प्लान किया हुआ और पकड़ धकड़ करना। हमने ये चुप करके भेड़ बकरियों की तरह ये कबूल नहीं करना ये जो जुल्म हो रहा है। कांटा डाल दिया इमरान खान के ऊपर। अगर इससे फर्क पड़ना होता तो आज इतनी लाइनें ना लगी होती तहरीक इंसाफ का टिकट लेने के लिए। खुदा के वास्ते अभी भी होश के नाखुन हो। सारे जो इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं पहले तो सारे सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही चीज है जो हमें बचा रही है हमारी जमहूरियत को। आज वो उसको अगर इन्होंने जो तकसीम करने की और जो भी कोशिश कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बैठ जाती है तो ये जमहूरियत खत्म हो जाती है, क्योंकि और कोई इदारा नहीं है जो इस वक्त इस मुल्क की जमहूरियत को बचा सके। इसलिए सारी कौम को एक तो कहता हूं कि अपनी आइन के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो। अगर ये इसी तरह चलता रहा हम सबको निकलना पड़ेगा और मैं इंशाल्लाह आपको लीड करूंगा। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात के लिए स्टेट बैंक को सोमवार तक 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया है। पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी की केस की इन चैम्बर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी का केस स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को सोमवार तक 21 अरब के फंड्स फराहम करे। 18 अप्रैल को स्टेट बैंक और वजारत खजाना अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। मंगल को इलेक्शन कमीशन भी अदालत उज़्मा में रिपोर्ट पेश करे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इन चैम्बर समात का 9 सिफात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत के मुख्तलिफ अकाउंट्स में 1 खरब 40 अरब से ज्यादा फंड्स मौजूद हैं। कबल अज़ीं पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स फराहमी केस की इन चैम्बर समात चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अटार्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक के हुक्काम पेश हुए। जजेस ने इलेक्शन के लिए फंड्स जारी न करने पर बरहमी का इजहार किया और वाज़ेह किया कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करना पड़ेगा। समात के दौरान अटार्नी जनरल को हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने पर सख्त सवालात का सामना भी करना पड़ा। अटार्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल दरामद किया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया। पार्लियामेंट ने इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा के बिल को मुस्तरद किया। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज मुकदमे में इमरान खान की हिफाजती जमानत 26 अप्रैल तक मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमा सियासी बुनियादों पर दर्ज किया गया। लाहौर से देखिए मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान के खिलाफ 4 अप्रैल को इस्लामाबाद के थाना रमना में सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया जो झूठा और बेबुनियाद है। इस मुकदमे में इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है। इमरान खान मुतलका अदालत में पेश होकर शामिल तफ्तीश होना और बेगुनाही साबित करना चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट से रजू करने के लिए इस्तदा है कि अदालत हिफाजती जमानत मंजूर करे। अदालत ने इमरान खान की 26 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए गिरफ्तार करने से रोक दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में नए कायदे ईवान के लिए इमरान खान ने 3 नामों ख्वाजा फारूक, अतर सादिक और चौधरी अनवारुल हक की मंजूरी दे दी। मुत्तहिदा अपोजिशन ने चौधरी मोहम्मद यासीन का नाम फाइनल कर लिया है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद इकबाल अपनी रिपोर्ट में। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के 15वें कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए खुसूसी इजलास कोरम पूरा न होने पर मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने नए कायदे ऐवान के लिए ख्वाजा फारूक, अजहर सादक और चौधरी अनवारुल हक के नामों की मंजूरी दे दी। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खट्टक और साबिक स्पीकर असद कैसर नामों की मंजूरी लेकर वज़ीर आज़म हाउस मुजफ्फराबाद पहुँच गए। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी हतमी उम्मीदवार का तयन करेगी। वजारत उज़्मा के नामों पर तहरीक इंसाफ मुबैना तौर पर धड़ेबंदी का शिकार नजर आ रही है। साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप की तरफ से चौधरी रशीद का नाम तजवीज़ किया गया है। मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यासीन का दावा है कि कायदे ऐवान के लिए इनके पास मतलूबा अक्सरियत मौजूद है। नए कायदे ऐवान के लिए सादा अक्सरियत के लिए 27 वोट दरकार हैं। अपोजिशन जमातों के पास 20 वोट मौजूद हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी के 12, मुस्लिम लीग नून 7, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का 1 रुकन मौजूद है। तहरीक इंसाफ की 31 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 1 निशस्त है। तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर के सदर तनवीर इलियास ने पार्टी में धड़ेबंदी की खबरों की तरदीद कर दी है। चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ करोड़ों रुपए की करप्शन का केस। एंटी करप्शन अदालत ने एंटी करप्शन को 27 अप्रैल तक चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी से रोक दिया है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही और मोनस इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है।
साबिक वजीर आला पंजाब के खिलाफ 12.5 करोड़ रुपए करप्शन का केस। एंटी करप्शन कोर्ट के जज अली रजा ने चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने 27 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। चौधरी परवेज इलाही को 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत। तर्जमान एंटी करप्शन के मुताबिक परवेज इलाही एंड कंपनी ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए एक गैर मुल्की कंपनी की वाजिबुल अदा रकम 2 अरब 90 करोड़ की अदायगी के एवज 12.5 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल की। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग ऑफिसर का हुक्म कालअदम करार दे दिया। जस्टिस शहराम सरवर ने दरख्वास्त पर समाअत की। ट्रिब्यूनल ने परवेज इलाही और मोनिस इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर PP 32 गुजरात को फरीक बनाया गया। और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे सांगला हिल से, जहां नामालूम अफराद ने फायरिंग करके बाप और 2 बेटों को कत्ल कर दिया है। अफसोसनाक वाकया सांगला हिल के नवाही गांव चक नंबर 37 यूसुफ आला में पेश आया। जिम्मेदार मोहम्मद मालिक अपने बेटे हसनैन के हमरा खेतों में काम कर रहा था कि नामालूम अफराद ने आकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से बाप और बेटा मौके पर ही जाँ बहक हो गए। मुसल्लह अफराद ने मकतूल के दूसरे बेटे को करीबी गांव महराजपुरा में फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जाँ बहक होने वालों में 50 साला मोहम्मद मालिक, 22 साला हसनैन और 15 साला तौसीफ शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। और कराची के चिड़ियाघर में नूरजहां हथनी की हालत तालाब में गिरने से तशवीशनाक, चलने फिरने से मासूर हो गई। हथनी को क्रेन की मदद से तालाब से बाहर निकाला गया। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीमारी के बाद नूरजहां के लिए एक और मुश्किल, तालाब में गिरने के बायस चलने फिरने से भी गई। गुज़िश्ता रात हथनी तालाब में उतरी तो वहीं गिर गई। चिड़ियाघर के अमले ने क्रेन की मदद से नूरजहां को तालाब से बाहर निकाला। डायरेक्टर जू कमर अयूब का कहना है कि हथनी नूरजहां की हालत पहले से बेहतर है। इसे नॉर्मल रूटीन में आने में वक्त लगेगा। ये काफ़ी बेहतर पोजीशन पे है, चूँकि जनवरी की बाद से अब तक ना ये लेटी थी, ना आराम किया था, ना इस तरह की कोई सिचुएशन हुई थी। ये खड़ी रही है मुस्तकिल। 16 ड्रिप्स हम रात भर लगा चुके हैं इसको। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान का कहना था कि कमजोरी की वजह से हथनी बैठी हुई है। हमने फॉरपास को वीडियो कॉल करके डॉक्टर से बातचीत की। इनका कहना है कि हथनी नूरजहां को साए में रखा जाए। बोर्ड के प्लान पर अमल किया जा रहा है। तमाम जो बोर्ड की एडवाइस है उसको हम फॉलो कर रहे हैं तमाम बहुत क्लोजली। शायद उसकी वीकनेस हुई है जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें, हर किस्म की जो ताकतवर अद्वियात होती हैं वो दी जा रही हैं, वाइटामिन हैं। गैर मुल्की माहिरीन की हिदायत के मुताबिक हथनी का इलाज जारी है। हथनी नूरजहां को 16 ड्रिप्स लगाई गयी, जबकि इसकी फिजियोथेरेपी भी की जा रही है। IMF से जल्द मुआहिदा होने के इम्कानात के बायस इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे कमी के बाद 284 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। 3 रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 4 रुपए 3 पैसे की कमी हुई। इंटरबैंक की तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर के दाम गिर गए। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए कमी के बाद 290 रुपए पर फरोख्त हुआ। 3 रोज के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता हुआ। माशी तजियाकारों के मुताबिक IMF की जानिब से जल्द मुआहदे के इम्कानात की खबरों के बाइस रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में कमी का रुझान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।